स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ये एक पुराने एडवर्टाइजमेंट का टैगलाइन था। लेकिन जब हम बदलाव यानी कि चेंज की बात करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। सबसे पहला, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और दूसरा, चेंज माइट बी डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और यही लाइन आज के सिविल सर्वेंट्स के संदर्भ में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, आइडियाज़ हैं, पर फिर भी आइडियाज़ और एग्जीक्यूशन के बीच में एक लंबा फासला होता है। ये दीवार काफ़ी दफ़ा इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, सोशल रियलिटीज़, इन सब के चलते खड़ा होता है। और इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर, फॉर्मर IAS ऑफिसर, फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री अनिल स्वरूप सर हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, श्री अनिल स्वरूप सर। Thank you. Sir, let me begin this discussion with a very simple question. You have written many books. आपने लिखा है Not Just a Civil Servant, Ethical Dilemmas for a Civil Servant. Now your new book, You Can Make It Happen, is also with us. Where did you find the motivation to write these books, and what is the overall agenda behind these books? You know, when I had written my first 3 books, all were for civil servants. Yes. Not Just a Civil Servant, Ethical Dilemmas of a Civil Servant, and No More a Civil Servant. I thought I was done with writing. But then came Encounters with Politicians. That was because I was browsing through my diary and came some very interesting incident. I had never thought that I'll write a book on You Can Make It Happen. But this was the topic that I used to deliver talks on for a long period of time. And then somebody suggested that when you speak about You Can Make It Happen, you do it for about an hour and a half. That's not sufficient to explain such an intricate topic like You Can Make It Happen. So why don't you think in terms of writing a book? It was then that I started thinking in terms of writing this book, and I'm glad I wrote it, because speaking has its limitations. There's a limitation of time, limitation of understanding. A book is a document that can be referred to subsequently, and that is what that triggered writing. But I'd like to make a point here. You mentioned that an idea, if it were to be made to happen, then it is relevant for civil servants. I would believe that it would be relevant for anyone. People have ideas. There's no dearth of ideas in this country, or for that matter, anywhere in the world. In this country, the real problem is those ideas don't seem to happen. There are policies, there are laws. I think the real issue is how do you make those ideas happen? Right. So let's get started with the title of the book. आपका title है You Can Make It Happen, जो प्राइमा फेसाई लगता है कि it is a motivational book. But once I had the opportunity to go through the entire किताब, वो एक execution based किताब है. So my question to you is, what is the difference between having an idea and then finally executing it? See, during my career of 38 years as a civil servant, apart from the initial years when I was struggling with what I wanted to do, I discovered that the real test of a civil servant, for that matter anybody else, is to make a difference on the ground in actual terms. Because the common man isn't really bothered about what idea may be sitting in my mind, what policies are. He is concerned about what happens to him. And hence I started examining as to how such ideas can be made to happen. It didn't happen overnight. It happened over a period of time. When I started discovering that for any idea to happen, you have to first understand the set of circumstances in which you have got to make that idea operate. I also came to understand very soon in my career that I couldn't do much to others. Initially, I was wasting a lot of time in trying to change others. Despite having read Mahatma Gandhi and despite his statement that the change has to begin with you, I tried to change others, and I discovered that I couldn't do much to others. But it was important to understand the set of circumstances in which you exist. Without that, you will not be able to make anything happen. That understanding is very important, and that could relate to politics, the economy, the society, the judiciary, the technology, the administration. All these aspects need to be considered before you think in terms of changing anything. That is one aspect of it. The other aspect is you, that is I. What do I do to myself after understanding the set of circumstances to make things happen on the ground? That was the primary objective of this book. Swarup sir, you talk about these constraints, political and economic and social, technological, environmental. आपके हिसाब से इन सारों में सबसे डिफिकल्ट कौन सा है जो मोस्ट नंबर ऑफ आइडियाज़ को किल करता है, स्पेशली जब हम सिविल सर्विस प्रैक्टिशनर्स की बात करते हैं?
it is very difficult to pick one, but if I were to pick one, I think the most critical part is the first one, the political acceptability. When I use the term political acceptability, I don't mean the politician. My contention is that we are unable to convince the decision maker about the idea that you have. No matter how good the idea is, the idea will not happen, because ultimately the decision maker decides as to what and how that idea will happen. So the first objective has to be to convince the decision maker into believing in what you believe in, and that is something, a second part of the book, that requires a development of certain skills, certain knowledge, for you to be able to convey the thoughts that you have in mind in a manner that the person who's listening to you agrees with what you're saying. So that's the most critical part, because the implementation of the idea will not even begin without the decision maker agreeing to what you're saying. So that's, to my mind, is very important. Sir, I went through your entire book and there are many anecdotes. I would not like to give away many spoilers here, but refer to few here. तो एक जगह मैंने पढ़ा, जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो रही थी, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज के पार्टिसिपेशन को लेके एक तरीके से काफ़ी सारा डाउट था, या कह सकते हैं काफ़ी सारा सस्पेशन था. तो कैसे एक सिविल सर्वेंट एक पॉलिटिकल सिस्टम को समझाए, given the knowledge gap? And let's first understand that there is a basic knowledge gap. The civil servant is someone who's got extensive education and training. The other person may not be as educated or trained. How do you fill that knowledge gap and then explain that? आपने सही उदाहरण उठाया. जो आप संदर्भ दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज का, ये मेरे जो एक और डायमेंशन है, इमोशनल रिलेटेबिलिटी, उसका पार्ट है. देखिए, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी तो होती है डिसीजन मेकर की, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में मैं ये भी बताऊंगा वो कैसे प्राप्त की गई. और दूसरा डायमेंशन है इमोशनल रिलेटेबिलिटी, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको उस कार्य को इम्प्लीमेंट करना, जिस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, उनको भी आप कैसे समझाएं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए भी हितकारी है. मीनिंग देयर बाय इट कंटेन्स अ वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द पर्सन हु हैव टू इम्प्लीमेंट द आइडिया. सो दीज टू एस्पेक्ट्स आर डिफरेंट एंड हैव टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. सो लेट मी फर्स्ट टच अपॉन political acceptability. How do you make an idea politically acceptable? So you have to couch in a language so that the politician or the decision maker starts believing that it is good for him. In case of Rashtriya Swasthya Bima Yojana, let me jump the gun a bit. 3 months before my retirement, I was Secretary School Education. And I get a call from the Prime Minister's office, the Principal Secretary to the Prime Minister, asking me to come and brief the Prime Minister on health insurance. So I was a bit surprised. I told him, मैं तो साहब एजुकेशन सेक्रेटरी हूँ. बोले नहीं, तुमने एक बड़ी अच्छी योजना चलाई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं पिछले 3 साल से, प्रधानमंत्री थोड़े समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं उनको कि इसके क्या लाभ हैं, तो तुम आके समझाओ. तो मैंने उनसे कहा, साहब मेरा लोकल स्टैंड क्या है? बोले ऐसा है कि आज शाम को हेल्थ का रिव्यू है, कि हेल्थ मिनिस्ट्री में चली गई थी ये योजना, और उसके बाद हम एजुकेशन का भी रिव्यू रखा देते हैं. अगर प्राइम मिनिस्टर तुमसे पूछते हैं तो तुम बता देना. तो शाम को मैं पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर के घर, 7 रेस कोर्स रोड. वहाँ पे 8-10 अधिकारी थे. उस समय अरुण जेटली जी जीवित थे, वित्त मंत्री थे, वो भी थे वहाँ पर. तो प्रस्तुतिकरण हुआ, स्वास्थ्य सचिव थी, उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया. उसके बाद मोदी जी फिर थोड़े से कहने लगे कि भाई आप लोग क्यों इंश्योरेंस के चक्कर में लगे हैं. फिर मेरी तरफ घूमे, अनिल जी आप जानते हैं इंश्योरेंस के बारे में, आपकी क्या राय है? मेरी राय वही थी जो स्वास्थ्य सचिव की थी, लेकिन मेरा प्रस्तुतिकरण थोड़ा भिन्न था. मैं 15 मिनट बोला. सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन सुनते उससे भी अच्छा है. 15 मिनट वो एक टक मुझे सुनते रहे. मैंने ये प्रयास किया उस प्रस्तुतिकरण में कि इस योजना के माध्यम से गरीब आदमी को कैसे लाभ मिलेगा, और उससे स्वाभाविक है कि उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा. जब मेरा प्रस्तुतिकरण समाप्त हुआ तो प्रधानमंत्री जी बोले, हाँ आप सही कह रहे हैं, इंश्योरेंस तो होना चाहिए. उस दिन आयुष्मान भारत पैदा हुई, उसका नाम बाद में मिला, लेकिन वो सहमत हुए कि इंश्योरेंस होना चाहिए. तो पैकेजिंग ऐसी थी कि हम पॉलिटिकली उसे एक्सेप्टेबल बना पाए. अब रही बात और स्टेक होल्डर्स की, उसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी थी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी थी, क्योंकि अंततः केंद्र सरकार कोई योजना सीधे नहीं इंप्लीमेंट करती है, वो राज्य सरकारों के माध्यम से करती है. तो मैं कई राज्यों में गया, कई मुख्यमंत्रियों से मिला, कई मुख्य सचिव से मिला, उनको ये समझाया कि इस योजना का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा. आपने उदाहरण दिया इंश्योरेंस कंपनी का, अंततः योजना तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को चलानी थी, तो अगर वो सहमत नहीं होते तो योजना नहीं चलती. तो मुझे स्मरण है जब पहली बार मैंने इस पर चर्चा की तो एक जना तो कोई सो ही गया मीटिंग में. मतलब उसने
उन लोगों को शुरू में ये आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी स्कीम सरकार के माध्यम से चल पाएगी। धीरे धीरे मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि ये स्कीम ना केवल जनसाधारण के लिए उपयोगी है, गरीबों के लिए उपयोगी है, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी लाभकारी है। जब उनको ये समझ में आ गया तो उन्होंने स्कीम को अपनाया, और इस स्कीम को जो भी सफलता मिली उसका प्रमुख कारण ये था कि जो स्टेक होल्डर्स थे उनको ये बात समझ में आई कि ये उनके लिए भी लाभकारी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मैंने इमोशनल रिलेटेबिलिटी के संग रखा है, और ये कहा है कि जहाँ एक और पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी महत्वपूर्ण है, यानी कि जो निर्णायक है, जो निर्णय लेने वाला है, अगर वो सहमत है तो चांसेस बढ़ जाते हैं इसकी सफलता के। उतना ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स का है, क्योंकि निर्णय लेने वाला तो सिर्फ निर्णय लेता है, क्रियान्वयन धरातल पर स्टेक होल्डर्स करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी करती है, हॉस्पिटल्स करते हैं, स्टेट्स करती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। अगर आप सरकार की किसी भी कार्यक्रम को देखें और उसका आकलन करें तो ये पाएंगे जहाँ जहाँ स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया है वहाँ योजनाएं वो सफल हुई हैं। जहाँ हमने वो डायलॉग, वो कॉन्वर्सेशन बंद कर दिया स्टेक होल्डर से, वहीं समस्या उत्पन्न होती। उदाहरण के तौर पे कहाँ पे समस्या हुई है अगर स्टेक होल्डर्स के साथ बात नहीं किया? आप कितनी स्कीम ले लीजिए, उसमें आपने स्टेक होल्डर, जैसे मेक इन इंडिया को मैं अक्सर बात करता हूँ। मेक इन इंडिया में आपने बहुत बढ़िया सी योजना बना दी, बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन जिस इंडस्ट्री के लिए आपको इम्प्लीमेंट करनी थी उससे आपने जानकारी करने का प्रयास नहीं किया कि उसको तकलीफ क्या है, क्योंकि वो आपको बताते कि उसका रास्ता क्या है। आपने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक की एक हायरार्की ले ली, सीढ़ी, लैडर, और उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक के माध्यम से आपने असेसमेंट शुरू कर दिया। भाई वर्ल्ड बैंक कैसे असेस करेगा? असली पीड़ा तो वो बताएगा जो धरातल पर है, यानी इंडस्ट्री बताएगी उसको असली पीड़ा क्या, और समाधान भी बताएगी। तो वो मेक इन इंडिया फिर सफल नहीं हुआ। इस तरह कई योजनाएं सरकार की हैं जो कि स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा उदाहरण इसका है जो फार्मर्स बिल था जी, फार्म लॉज जो बनने थे, मेरे विचार से बड़े अच्छा लॉ था, वो बड़ा उपयोगी लॉ था। शायद हमने फार्मर्स को जितने एक्सटेंट तक कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था नहीं लिया, और अंततः उसको विड्रॉ करना पड़ा बिल को, बल्कि एक्ट को रिसाइंड करना पड़ा, पार्लियामेंट में रश थ्रू किया गया। इससे ये अनावश्यक रूप से संकेत चले जाते हैं कि हम कुछ उसके गले में ठूस रहे हैं। लेकिन अगर हम चर्चा करके किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये संभव है कि हम उसको समझा सकें कि जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं उसका लाभ उनको होगा। फार्मर बिल्स एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक अच्छा बिल इस वजह से नहीं चल पाया क्योंकि हम उसे इमोशनली रिलेटेबल नहीं बना पाए। जी स्वरूप सर, आप बात करते हैं इमोशनल रिलेटेबिलिटी की या फिर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की। एक सवाल जो यहाँ से उभर के आता है कि अगर सिविल सर्वेंट्स जो एक्सपेक्टेड है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्या वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस के बारे में उन्हें सोचना चाहिए, स्पेशली जब हम पॉलिसी की बात करते हैं? देखिए, आप पॉलिटिकल कन्वीनियंस नहीं सोच रहे हैं, आप काम की सोच रहे हैं, लेकिन जिसको निर्णय लेना है उसको आप कन्विंस करेंगे। एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि आपको नेता को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने ये गलती की थी जो मैंने अपनी चौथी पुस्तक एनकाउंटर विद पॉलिटिशियन में कहा, मैं नेता को समझ नहीं पाया शुरू में और हर नेता से लड़ लेता था। आपको नेता को समझना पड़ेगा, अपना काम करने के लिए उसको समझना जरूरी है। आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना सही काम कराने के लिए भी उसको समझाना पड़ेगा उसका हित क्या है। उदाहरण देता हूं, थोड़ा अलग है उदाहरण जी। मैं मायावती जी का विशेष सचिव था, तो नई मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो थोड़ा अपना मेरे ख्याल रौब दिखाने के लिए वो मीटिंग में ही डीएम्स को और कमिश्नर को सस्पेंड कर देती थी। ये पहले कभी होता नहीं था, बड़ा आश्चर्य था लोगों, क्या हो रहा है, मीटिंग चल रही सस्पेंड कर दिया। तो एक दिन एक मीटिंग में उन्होंने एक डीएम को सस्पेंड कर दिया, बड़ा अच्छा अधिकारी था। वो आया मेरे पास, कहता है सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी। उसने बताया मुझे पूरा उसकी वाकई कोई गलती नहीं थी। अब प्रश्न ये था कि इसको रीइंस्टेट कैसे कराएं। यंगर अनिल स्वरूप होता, इमेच्योर अनिल स्वरूप होता तो जाके भिड़ लेता। कई आईएएस अफसर करते हैं, मैं भी करता था, भिड़ लिया और ट्रांसफर हो गया, और रिटायरमेंट के बाद आके कहता मेरे 75 ट्रांसफर हो गए और मैं मार्टर बन जाता। काम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं मार्टर हो जाता और दूसरों पे दोष आरोपित कर देता। ये व्यवस्था इतनी खराब है कि मैं कोई काम नहीं कर पाया। मेरा मानना यह है कि कम से कम आईएएस अफसर को तनख्वाह खाली ऑनेस्ट होने के लिए नहीं मिलती। ऑनेस्ट तो होना ही है आपको, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको काम कराना है, और उसके लिए जो निर्णय लेने वाला उसको आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मायावती जी को बड़े नज़दीक से देखा था और ये पाया था जब सुबह ब्रेकफास्ट करती हैं तो उनका मूड सबसे अच्छा होता है। देखिए, है बड़ी छोटी सी बात, हम इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि जिसने निर्णय लेना है या किसी भी व्यक्ति में एक ही मूड नहीं रहता। तो हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते थे, तो हम लोग जितने काम होते थे सुबह करा लेते थे नाश्ते के टाइम पे। तो मैं सुबह गया उनके कमरे में, तो नाश्ता कर रही थी, वो बड़े अच्छे मूड में थी। और अनिल कैसा चल रहा है? तो मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर मैं मुद्दे पर आया, मैंने कहा मैडम वो आपने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया,
उससे गलती हो गई, बड़ा अच्छा अधिकारी है, गलती हो गई। तो कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, तुम्हें पता था उसकी गलती नहीं थी और तुमने कह दिया गलती थी। मैंने कहा भाई मेरे, अगर मैं कहता उसकी गलती नहीं थी आपकी थी तो मैं भी सस्पेंड हो जाता। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करना है। इनफैक्ट इस बुक के दूसरे भाग में मैंने लिखा है कि कौन कौन सी स्किल एक सिविल सर्वेंट, स्किल का मतलब ये नहीं है कि वो गलत काम करे, स्किल का मतलब यह है कि उसी चीज को वो कैसे प्रस्तुत करे, और उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब मैंने ये कहा उनसे कि अरे अच्छा गलती हो गई, तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा अधिकारी तो गलती कैसे हो गई, मैं फिर फंस गया। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैडम किसी से भी गलती हो सकती है, उससे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है, गलती तो स्वाभाविक है, हो जाती है लोगों से, लेकिन अधिकारी अच्छा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा अधिकारी है, मैंने कहा हाँ मैडम बहुत अच्छा, ठीक है बहाल कर दे। 1 मिनट में उस अधिकारी का रीइंस्टेटमेंट हो गया। अब इसमें आप गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी व्यक्ति से काम कराना है तो आपको उस व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। वही राजनेताओं के लिए मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि आपको नेता के लिए गलत काम नहीं कराना है, काम आपको सही कराना है। लेकिन अगर आप सही प्रकार से प्रस्तुत करेंगे नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। जैसा मेरे साथ बाद में भी हुआ, मैं कई बार फेल हुआ। मुझे स्मरण है कि जब मैं शिक्षा सचिव था, अपने करियर के ऑलमोस्ट एंड में, जब बीएड और डीएलएड कॉलेजेस के अगेंस्ट हम लोगों ने एक्शन थोड़ा लेना शुरू किया, तो उसमें एक आईएएस अफसर को रिजाइन करना पड़ा, सीनियर आईएएस अफसर को। शायद मैं मंत्री जी को सही तरीके से नहीं समझा पाया, अपनी बात को नहीं कह पाया, उसको रिजाइन करना पड़ा। लेकिन उससे मैंने सीखा। उसके बाद जब चेयरमैन सीबीएसई का प्रकरण आया, 2018 में पेपर लीक हुआ, हमने एक समरी इंक्वायरी की और पाया कि चेयरमैन सीबीएसई या सीबीएसई के किसी अधिकारी को कोई गलती नहीं थी, तो आई स्टूड बाय देम। फिर मैंने जो प्रस्तुत किया मंत्री जी के सामने, वो मुझसे सहमत हुए और उन अधिकारी को नहीं हटाया गया। अब आज से कंपेयर कीजिए, आप छोटी सी बात पे आप अधिकारी को हटा देते हैं। मेरा ये मानना है कि खाली हटाने से काम नहीं चलता। अगर गलती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, गलती नहीं है तो उसको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे डिमोरलाइज होती हैं वो और पूरा विभाग। उस समय जो चेयरमैन थी उनको रखा गया, उन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया, ऐसी मुस्तकिल व्यवस्था बनाई उन्होंने एग्जामिनेशन की जो आज तक बढ़िया चल रही है। उसके बाद वही सचिव बनी एजुकेशन डिपार्टमेंट की और बड़ा अच्छा काम किया। तो आपको अपने आप को, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि बड़ा आसान है कहना, जैसे गालिब के नाम से शेर चलता है, उनका नहीं है, लेकिन उसका मतलब बड़ा गंभीर है। उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। आप सर्कमस्टांसिस को ब्लेम करते रहे। आज की तारीख में भी कई अधिकारी कहते हैं व्यवस्था ऐसी है, जैसा अंग्रेज बना के गया है व्यवस्था। मेरा ये मानना है व्यवस्था जो है वो है, आपको अपने आप से प्रश्न करना है कि इस व्यवस्था के होते हुए क्या मैं जो कर सकता था मैंने किया जी। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर ये मान के चलेंगे कि मैं ही खाली ईमानदार हूं और दुनिया बिल्कुल बेईमान है, तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। मेरा ये मानना है, हैं बहुत बेईमान लोग लेकिन बहुत ईमानदार भी हैं, और उन बेईमानों में भी कुछ अच्छाइयां हैं, आप उसको उजागर कीजिए। सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, and that is precisely what I am saying here, that you can make it happen provided you understand and appreciate the set of circumstances and change yourself accordingly. Right. You spoke about communications and timing being critical. जैसा मैं मायावती जी के एग्जाम्पल में आपने कहा ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंचे, उस समय अच्छे मूड में रहते थे, तो वो मान ले आपका बात। आपके किताब में एक और एनेक्डोट मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, जहाँ पे कल्याण सिंह जी के साथ मीटिंग हो रही थी आपकी, उनको 7 इलेक्शन रैलीज अटेंड करने थे। वो भी देखिए, तब मैं इतना मुझे समय नहीं हुआ था, ये मायावती जी से पहले मैं उनके साथ था, कल्याण सिंह जी के साथ। मैं उस समय सूचना निदेशक, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था। मेरा प्रमुख कार्य ये था कि मैं सुबह जाके, उन दिनों सोशल मीडिया तो था नहीं, सुबह सुबह पेपर क्लिपिंग्स ले आके उनको दिखाते थे और वो जो डायरेक्शन देते थे उस हिसाब से उसको फॉलो अप करते थे। इस दिन जब मैं पहुंचा उनके घर पे, तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहाँ खड़े थे और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो थोड़े से नाराज थे क्योंकि उनके साथ मीटिंग लगा दी गई थी। इटावा में बाई इलेक्शन होना था, पॉलिटिकल मीटिंग्स थी साथों, लेकिन वो नाराज हो रहे थे कि किसने साथ मीटिंग लगा दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं साथ कैसे करूंगा, आखिरी 2 मीटिंग कैंसिल कर दूं। जब उन्होंने कहा इस चीज़ को, तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों उनसे सहमत होकर गर्दन हिलाने लगे। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप साथ नहीं कर पाएंगे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोल दिया बीच में। मैंने कहा सर, वैसे तो आपका ये राजनीतिक प्रकरण है, लेकिन मेरी राय में लास्ट मोमेंट पे आप मीटिंग कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, उधर चीफ मिनिस्टर आते थे तो साहब बड़ी तैयारियां होती थी, लोगों को आशाएं होती थी, अपेक्षाएं होती थी। आप 2 मिनट के लिए जाइए, बोलिए कुछ नहीं, क्षमा मांग लीजिए, लेकिन जाइए जरूर, कैंसिल मत कीजिए। तो मैंने एक तरफ घूर के देखा, क्या मैं जा सकता हूँ?
जैसे ही उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी मुझे कोहनी मारने लगे चुप रहने के लिए। मैं चुप नहीं हुआ, मैंने कहा सर मेरे तो आपको राय है, फिर जैसा आप ठीक समझे। चीफ सेक्रेटरी और जोर के मुझे कोहनी मारने लगे। फिर 10 सेकंड कोई नहीं मिला। 10 सेकंड के बाद मुख्यमंत्री फिर मेरी तरफ घूमे और बोले अनिल जी आप सही कह रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी ने एकदम गर्दन ये अपनी कोहनी पीछे खींची और कहा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। तो इस टाइप के कई वाकये आए मेरी कुछ आदत सी थी कि जो मैं ठीक समझता था बोलता था। शुरू में शायद जिस भाषा में मुझे बोलना चाहिए वो भाषा नहीं थी, धीरे धीरे वो भाषा ठीक हो गई। देखिए बात आपको वही कहनी है, आपको अनावश्यक रूप से झगड़ा नहीं करना है। मैं पहले झगड़ा करता था, बाद में भी कुछ झगड़े किए, लेकिन शायद उतने गंभीर नहीं थे जितने पहले थे। तो हमें अपने आप को देखना है। मेरा ये स्पष्ट मानना था कि हम दूसरे का ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं कैसे अपने आप को सुधारूं, कौन कौन सी चीज़ें सीखूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में आपका सीखना कभी रुकता नहीं है। तो अगर आप सीखते चलें, मैंने बहुत अधिकारियों से सीखा, बहुत नेताओं से सीखा, कल्याण सिंह जी से बहुत कुछ सीखा मैंने। तो हर व्यक्ति से आप सीख सकते हैं और ये आपके पास विकल्प हमेशा है सीखने का, और सीख के आप धीरे धीरे परिपक्व बनेंगे। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब आप में परिवर्तन इतना कैसे हुआ। हमने कहा एक दिन में नहीं हुआ। वो फिल्मों में होता है कि रात को कोई सपना देखा या कोई एक्सीडेंट हो गया उसके बाद परिवर्तित हो गया। सामान्य जीवन में ये सब धीरे धीरे सीखते हैं। अगर आपकी चाह है सीखने की तो आपको बहुत मौके मिलते हैं सीखने के। सर पर फिर वो डिसीजन कैसे लें? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मीटिंग में बैठे हैं, आपके सीनियर जैसा आप कह रहे हैं कि वो एक सही या गलत डिसीजन के बीच में चूज़ करने पे हैं। नाउ मेनी अ टाइम्स यू विल कीप क्वाइट, आप नहीं बोलेंगे कि ठीक है मेरा क्या जा रहा है। वो डिसीजन मेकिंग कैसे लें? वो ना सिर्फ सिविल सर्वेंट्स पर, आप जैसा कह रहे थे, वो मैनेजमेंट में भी पीपल के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू चूज द राइट टाइम, द राइट मोमेंट टू स्ट्राइक दैट आयरन व्हेन इट इज हॉट। टाइमिंग तो आपको प्रैक्टिस से आएगी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप इस समय बोल दीजिए। आप जी, मुझे भी धीरे धीरे अनुभव से आया कि कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, ये आपको अनुभव से आएगा। लेकिन बोलने की प्रक्रिया जो है वो अभ्यास से आएगी। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो आप कैसे बोलते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। कब बोलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन कैसे बोलते हैं इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपकी स्किल ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने कई बार जिन बच्चों से भी मैं बात करता हूँ उनसे मैं कहता हूँ कई बार तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आप कहना चाह रहे हैं लेकिन वो शब्द नहीं मिल रहा आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, और कभी कभी आप जो बोल देते हैं आपका मतलब कुछ और होता है, वो समझ कुछ और जाता है। तो इसका मतलब आपकी स्किल में कुछ कमी है। तो जहाँ एक और आप स्किल तो आप डेवलप कर सकते हैं कम्युनिकेशन की, लेकिन टाइमिंग जो है वो अनुभव से आएगी। आप ये कह सकते हैं कि साहब हमें टाइमिंग का पता ही नहीं रहता, नहीं ऐसा नहीं है। आप जब स्किल डेवलप कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कब बोलना है। जी, कम्युनिकेशंस और टाइमिंग, मेरा यहाँ तक मानना है कि इन दोनों को काफ़ी क्रिटिकल मानते हैं आप। इसी पे एक और जुड़ा हुआ सवाल है, अगेन एन एनेक्डोट फ्रॉम दिस बुक इटसेल्फ, यू कैन मेक इट हैपन। जो एक जगह आपने लिखा हुआ है कि एक बोरिंग और पाइप का प्रोक्योरमेंट का मामला था जहाँ पे सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होना था। फिर आपने कहा कि नहीं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं, उससे करप्शन कम होगा। फिर 2 शब्द हटा दिए गए उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग से, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो आपके ही सीनियर्स ने हटाया था। तो क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा करप्शन एक इलीगल ऑर्डर से हो, या फिर ये मैनिपुलेशन से भी हो सकता है? क्योंकि काफ़ी दफ़ा कहा जाता है स्वरूप सर कि हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं दे आर वेरी गुड एट इंग्लिश। व्हेन वी गो फॉर दिस क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, वहाँ पे 1 कॉमा 1 डॉट उसका सारा मटेरियल चेंज हो जाता है। तो एक हाउ डज वन अप्रोच दैट? ऐसा है, जहाँ एक और आपकी एफिशिएंसी है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप अगर एफिशिएंट नहीं होंगे तो आप जितने भी ऑनेस्ट हों आप काम नहीं कर पाएंगे। धरातल पर काम करने के लिए आपको एफिशिएंट होना जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूं ऑनेस्टी अलोन इज नॉट इनफ, ऑनेस्टी इज ए नेसेसरी कंडीशन, बट यू हैव टू बी एफिशिएंट टू बी अ गुड ऑफिसर। अ गुड ऑफिसर शुड बी बोथ ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट। और एफिशिएंसी के लिए आपको अपनी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, चाहे वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज हो, चाहे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज हो, चाहे सब्जेक्ट मैटर की कॉम्पिटेंसीज हो, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि खाली ऑनेस्टी लेकर आप नहीं घूम सकते, क्योंकि शब्दों के हेर फेर से गड़बड़ हो सकता है। जैसा आप एपिसोड में बता रहे हैं कि हमारे एक बॉस थे, उन्होंने 2 शब्द हटा दिए, उसका तात्पर्य अलग हो गया पूरा, और उससे काफ़ी नुकसान हो सकता था। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, क्योंकि हर प्रकार के होशियार लोग हैं, आपको उनसे ज़्यादा होशियार होना है। और मेरे विचार से तो ऑनेस्ट आदमी को और ज़्यादा होशियार होना है, क्योंकि अगर ऑनेस्ट आदमी एफिशिएंट नहीं होगा तो फंस जाएगा, उसको भी चक्रव्यूह से निकलना नहीं समझ में आएगा कैसे निकलें। खाली ऑनेस्टी में आप फंस भी सकते हैं। अगर आप एफिशिएंट भी हैं तो आपके
आँख कान खुले रहेंगे, आपको पता रहेगा कहाँ गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि डिसऑनेस्ट आदमी अगर इनएफिशिएंट है वो तो जेल में जाएगा, लेकिन ऑनेस्ट आदमी फंस जाएगा अगर वो इनएफिशिएंट है। वो या तो उसकी बदनामी इस बात से होगी कुछ ना करता है ना करने देगा, और या फिर करेगा और इनएफिशिएंट होगा, उसको जानकारी नहीं होगी तो वो भी फंस जाएगा। देखा है मैंने कई ऑनेस्ट ऑफिसर्स को परेशान होते हुए, उनको समझ में नहीं आता क्या करें। तो मेरे विचार से एफिशिएंसी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का जो द्वितीय भाग है उस पे मैंने इस पे बहुत बल दिया है कि कैसे अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज डेवलप करें। इफ यू वांट टू मेक इट हैपन, ऑनेस्टी अलोन विल नॉट हेल्प यू. You have to become efficient, and for efficiency you have to develop those competencies that have been mentioned in the second part of this book. Swaroop sir, is the government of India or the state governments, are they efficient? Because again, अगर हम सरकार के दो पहलू देखते हैं, एक सिटीजन, अगर आप नो पार्किंग में लगाते हैं तो 30 सेकंड में आपकी गाड़ी सरकार उठा के लेके चली जाती है, पर जब आपके पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन का बात आता है वहाँ पे बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, सरकार पे जनरल जजमेंट पारित करना मेरे लिए उचित नहीं है। कई सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, अब उससे एफिशिएंट कहें ना कहें। इस पुस्तक में मेरा जो बल है वो व्यक्ति पर है, सरकार पर नहीं है। सरकार को तो ना मैं बता सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, व्यक्ति को जरूर बता सकता हूँ। मेरा मानना है कि सरकार भी एक सर्कमस्टांस का अंग है। अगर कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति इन्हीं परिस्थितियों में सफल होना चाहे तो क्या करे। और मेरा फिर नेक्स्ट मानना यह है कि अगर ज़्यादातर अधिकारी एफिशिएंट हो जाएंगे तो सरकार अपने आप एफिशिएंट हो जाएगी। समस्या ये आती है कि हम सरकार को इनएफिशिएंट बना के अपनी इनएफिशिएंसी छुपाने का प्रयास करते हैं। कई अधिकारी, इस एक कारण ये भी था इस पुस्तक लिखने का कि कई अधिकारी मुझे सिस्टम को गाली देते हुए मिलते थे कि मैं सिस्टम की वजह से नहीं कर पाता हूँ या नेताओं की वजह से नहीं कर पाता हूँ। तो मैं अक्सर उनसे बहुत छोटे छोटे प्रश्न करता था। ये बताओ, कभी नेता ने तुमसे ये कहा है कि ऑफिस समय पर मत पहुँचो? मैंने जाने कितने अधिकारियों को लेट आते हुए देखा। फिर मैं पूछता था, ये बताओ कभी नेता ने तुमसे कहा अपना ऑफिस गंदा रखो? किसी नेता ने तुमसे ये कहा है कि जब कोई तुमसे मिलने आए उससे बदतमीजी से बोलो? किसी नेता ने तुमसे ये कहा कि फाइल पर बैठे रहो, निर्णय मत लो? पूरी ब्यूरोक्रेसी इस बात के लिए बदनाम नहीं है कि वो गलत काम नहीं करती, इस बात के लिए बदनाम है कि सही काम समय से नहीं करती। तो किस लिए है? ये तो आप पे निर्भर करता है। आप अगर धीरे धीरे देखेंगे, और जो मैं अपना जब देखता हूँ अपने पूरे करियर को, मेरे ख्याल 10-12% केसेस में नेता मुझसे कुछ कहता था, 80-85% तो मेरे हाथ में था। मैं वो ना करके वो जो 10-12% जो नेता कह रहा है उस पर उलझा रहता हूँ। अरे भाई, आप 80-85% करेंगे तो आपको और करने का मिलेगा। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन व्हाट यू कांट, दैट कैन विल ग्रो एंड यू विल ग्रो इन कॉन्फिडेंस दैट समडे यू विल बी एबल टू डू थिंग्स विच यू कांट डू नाउ। So the focus has to be on what you can. Identify what you can. अगर हम इस प्रश्न का उत्तर पहले नहीं देते हैं कि जो मैं कर सकता हूं वो कर रहा हूं, तो फिर इस बात की किस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि नेता ये नहीं करने देता। कितनी चीजें हैं, मैं अक्सर जब बैठता हूं अधिकारियों के साथ तो मैं उनसे पूछता हूं, बताओ इस चीज में तुमसे नेता ने कुछ कहा? मुख्य रूप से निर्णय, कई आप निर्णय आप ले सकते हैं भाई, ज्यादातर पत्रावली तो नेता तक जाती नहीं है। और फील्ड में जब मैं था तो नेता से कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन सी चीज नेता पर जाती है? सब मुझे निर्णय लेना है या मेरे अधिकारी को निर्णय लेना? किस बात को हम नेता को कह रहे हैं? इसमें मैंने जो फॉर्मूला बनाया बड़ा सिंपल है, उसमें मैंने डिस्कस भी किया है कि अगर नेता कोई सही काम कहता है आपसे तो आप उसे तुरंत कर दीजिए। ये मैं पहले नहीं करता था, मेरा प्रेजुडिस था नेता के अगेंस्ट। आप तुरंत कीजिए ना, सही काम कह रहा है। और गलत काम कह रहा है, गलत से मेरा मतलब अपना चिंतन नहीं है, नियम के विरुद्ध है, तो पोलाइटली मना कर दीजिए। समस्या आती है ग्रे एरिया में। वो मुझसे कह रहा है ट्रांसफर कर दो इस अधिकारी को, तो वो इलीगल नहीं है काम, उसको अधिकार है। लेकिन मैं ये समझता हूं ट्रांसफर करने से डिमोरलाइज होगा, गलत सिग्नल जाएगा। ठीक है ना? दो डिफरेंस ओपिनियन है। वहां मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो मैं नेता को समझा ले जाऊंगा कि इसका ट्रांसफर मत कीजिए। शुरू में क्या होता था, मैं लड़ लेता था नेता से कि इसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैं छोटी चीज के लिए लड़ के फिर बड़ा काम नहीं कर पा रहा हूं। अगर नियम के विरुद्ध नहीं है तो मैं अपनी बात पूरी तरह रखूंगा, जोरदार तरीके से रखूंगा। उसके बाद ओवर रूल हो जाऊंगा तो नेता का काम कर दूंगा, लेकिन नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आपकी ये रेपुटेशन बनेगी, ये आदमी गलत काम नहीं करता, सही काम तुरंत कर देता है। यू डेवलप ए रेपुटेशन ऑफ एफिशिएंसी। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे सेकेंड हाफ करियर में किसी नेता ने कभी भी मुझसे कोई गलत काम नहीं कहा, जबकि मैं बहुत सेंसिटिव पोजिशन पे रहा हूं, कोल में रहा हूं, एजुकेशन, किसी ने गलत काम कहा ही नहीं। तो ये मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जो आप नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो तो करिए।
जैसे पीआईसी यूपी केस में जब आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया था, कौन सी केस में? पीआईसी यूपी का एक आपके पिकअप का, अच्छा, पिकअप लिखा हुआ है। पिकअप में, हाँ, वो ऐसा टाइम था। उसमें एक सवाल उभर के आता है कि एक सिविल सर्वेंट या एक मैनेजर या समवन हु इज अ प्रैक्टिशनर, विच आर द हिल्स दैट यू चूज टू डाई ऑन, और कब आपको टैक्टिकल रिट्रीट करना चाहिए? नहीं, टैक्टिकल नहीं होता इसमें, मतलब बहुत ज्यादा आपको टैक्टिक नहीं सोचनी है जी आपको ये देखना है कि नियम के विरुद्ध है या नहीं है। जी पहला, अगर नियम के विरुद्ध नहीं है तो बहुत बहस नहीं आप कर दीजिए, और नियम के विरुद्ध है तो पोलाइटली मना कर दिए। जहां नियम साइलेंट है या डिस्क्रिशनरी है, जो मैंने ट्रांसफर को बताया, जो आपने पिकअप का उदाहरण दिया, वहां आप अपनी बात जोर से कहेंगे और फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड यू स्टिक टू योर गन्स। So, for example, in a particular case, when the chief minister wanted me to suspend a few videos, I chose to get transferred out. तो ये आपको उस समय डिसाइड करना है कि ये, अच्छा, उसमें नियम के विरुद्ध नहीं था। चीफ मिनिस्टर अधिकृत हैं किसी को करने के लिए, मुझे तो आदेश पारित करना था। मेरे विचार से वो पूरा गलत सिग्नल जाता, तो इसलिए मैंने स्टैंड ले लिया। कई जगह पर वो ट्रांसफर के लिए कहते थे, मैं अपनी बात कहता था, मान जाता था उनकी बात। अब लास्ट में एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में जब प्रकाश जावड़ेकर जी, बहुत बढ़िया मंत्री थे, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि भाई ये बीएड और डीएलएड कॉलेजेस में जो स्टार्ट किया चेयरमैन एनसीटी को, इसको विड्रॉ कर लीजिए, मत नोटिस दीजिएगा। पहले मैंने उनको समझाने की कोशिश की, नहीं समझे, मैंने मान ली उनकी बात। तो ये आपको ओवर ए पीरियड टाइम यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग द वैल्यू जजमेंट। आपका क्लैश हो रहा है ना इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉ। तो आप डिसाइड करेंगे कि भाई, इज इट इंपॉर्टेंट इनफ एन इशू फॉर मी टू पुट माई जॉब एट स्टेक और पुट माई ट्रांसफर एट स्टेक? दैट इज अ कॉल दैट यू हैव टू टेक। दिस इज समथिंग which is elaborated in my second book, Ethical Dilemmas of a Civil Servant, where I came across probably 70 such incidents are given. You have written about education sector also in this book. आजकल एजुकेशन काफ़ी न्यूज़ में भी बना हुआ है, जहाँ पे आपने एक व्याकरण दिया, एक वक्तव्य दिया है अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ बुक्स बाय प्राइमरी स्कूल्स, जहाँ पे एनसीईआरटी का समय पे नहीं आ पाते थे, तो वो लोग प्राइवेट किताबों की तरफ जाते थे, जिसके कारण लागत करीब 300 करोड़ के आसपास की थी। कैसे एक सिविल सर्वेंट या एक मैनेजर, जब इस तरह के जजमेंट्स को आपको करना है, जहाँ पे वन दैट इज नेचुरल, इट शुड हैपन, एनसीईआरटी शुड बी मेड एक्सेसिबल एट द करेक्ट टाइम, बट आप देखते हैं कि एक माफिया है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, हाउ डज वन बैलेंस? देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया। इसमें मेरे मंत्री ने कोई इंटरफेयर नहीं किया जी। देखिए, ये भी हो सकता था पॉलिटिकल, वो इंटरफेयर नहीं। हमें इसमें इसकी समस्या के तह तक जाना होगा। हर समस्या के तह में जाएंगे तो आपको उसका निकलने लगेगा रास्ता। इस पर्टिकुलर प्रकरण में होता क्या था कि क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तकें लेट आती थी जी, इसलिए प्राइवेट लोगों की किताबें बिक जाती थी। बड़ा सिंपल था, दैट सिंपल इज दैट। तो मैंने नवंबर में टेक ओवर किया एज सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। 1 महीने में मैंने सब रिव्यू किया, तो मुझे ये वाला एस्पेक्ट सामने आ गया। तो टाइम था मेरे पास 3-4 महीने का, क्योंकि सेशन मार्च अप्रैल में शुरू होना था। मैं एनसीईआरटी के पीछे लग गया। आई इंश्योर्ड दैट देयर बुक्स वर पब्लिश्ड इन टाइम। उनकी बुक्स आ गई टाइम पे, तो कोई क्यों महंगी किताबें खरीदेगा? इनकी किताबें खरीदने लगे। तब वो लोग पब्लिशर्स मुझसे मिलने आए कि सर, आपकी बार तो एनसीईआरटी की पुस्तकें जल्दी आ गई, हमारी पुस्तकें नहीं बिकेंगी। तो मैंने कहा, इसमें गुनाह क्या हुआ है? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? इनफैक्ट व्हाट वाज रॉन्ग वाज, मैं नहीं कहता वो जानबूझ के एनसीईआरटी कर रहा हो सकता है इंटरनल इनएफिशिएंसी रही हो, उसकी वजह से आपका पेरेंट्स को इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा था किताबों के लिए, तो अब वो बच रहा है उनका। सो हर इशू को हमें डिटेल में जाके देखना पड़ेगा। हर इशू का समाधान पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से नहीं रुका हुआ है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मुझसे किसी नेता ने नहीं कहा कि तुम एनसीईआरटी किताबें जल्दी ना छपवाओ, किसी ने नेता नहीं कहा। छपाई, हाँ, वो लोग, उनके रिप्रेजेंटेटिव जरूर मिलने आए, उनको मैंने समझा दिया। तो मेरा अनुभव ये बताता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कई इश्यूज में आता है, लेकिन ये कहना कि मैं कोई काम ही नहीं कर सकता और हर चीज के लिए मैं भिड़ जाऊं हर से, ये उचित नहीं है। क्या आपको नहीं लगता सर कि जब आप पूरे सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सो यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यू चैंपियंस हु आर गुड एट आइडेंटिफाइंग द टाइमिंग, हु आर गुड एट कम्युनिकेशंस, who are good at coordination, and then they will be able to carry through whatever work they are proposing. Are we not expecting too much of a civil servant that you have to be a champion in your field? No, and not at all. Have mastery you of don't all have of to be these? champion. You have to be normal civil servant. हमने से एबनॉर्मल बना दिया। ये बार बार कहकर कि व्यवस्था की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं तो इस व्यवस्था में रहा हूँ
कई ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं और वो इस बात को प्रूव करते हैं कि आप ये कर सकते हैं। वो ये भी प्रूव करते हैं कि आप नहीं कर रहे, इसमें आपकी कमी है, सिस्टम की कमी नहीं है। हमारे लिए बड़ा आसान है सिस्टम को ब्लेम करना, जिन्हें कहाँ सिस्टम बैठा रहता है कि हम उसको हर चीज़ के ब्लेम करते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, हाँ कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी तरफ क्यों नहीं देखते जो आप कर सकते हैं? यू कैन मेक इट हैपन, दैट्स माई बिलीफ। One more question that comes to my mind, sir. Is the office of district magistrate overburdened? क्योंकि you have been a district magistrate yourself. आज हम काफ़ी जगह देखते हैं, एक डीएम है, एक सीईओ है, सीईओ डेवलपमेंटल काम देखता है, डीएम अलग काम देखता है, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में एक तरीके से डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी या एचडीआई हम देखें वो बेहतर है कंपेयर टू दोज डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे डीएम सर्वे सर्वा है। डोंट यू थिंक दैट इंस्टीट्यूशन नीड्स रिफॉर्म नाउ? नो, डीएम पहली बात तो ओवरबर्डन नहीं है, उसको इतना सपोर्ट होता है जिले में। प्रॉब्लम तब आती है जब डीएम ये समझने लगता है सब मैं ही करूँगा। अब वो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है। जब आपने समझ लिया सब काम मैं ही करूँगा तो प्रॉब्लम फंसती है। डीएम का काम इज एज ए लीडर, ही हैज़ टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर हिज टीम टू वर्क। हर डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड होता है, आप उनके माध्यम से काम कराइए। मैं रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ऐसा कोई ओवरबर्डन नहीं था। मैं क्राइसिस टाइम पे रहा था, जब क्राइसिस होती थी तो ठीक है थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, बट अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। इन फैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएम needs to be discussed further because there has to be somebody at the district level to coordinate the activities, otherwise they will go haywire. मैं देखता हूँ स्टेट लेवल पर, एनए लेवल पर देखता हूँ कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होती अगर डीएम ठीक है। वो सब क्योंकि सरकार का जो विकास का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, जो भी काम है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में है। कोई एक विभाग अलग खड़ा होकर काम नहीं कर सकता और वो कोऑर्डिनेशन का काम किसी को करना पड़ेगा। उसके लिए मैं समझता हूँ डीएम्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल and they will continue to play an important. We have spoken about several interlinked topics, पर एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। यू आर द चीफ मेंटर हियर एट स्टडी IQ। जो भी स्टूडेंट्स 2027, 28 या 29 में अपीयर करने वाले हैं, एक तो इनके लिए एक आई ओपनिंग डिस्कशन रहा होगा, बट जब हम बात करते हैं उन सारे क्वालिटीज़ के, जैसे आपने बात किया कम्युनिकेशन, टाइमिंग, एम्पैथी, कोऑर्डिनेशन, क्या कोई तरीका है कि कोई एस्पिरेंट अभी से उन चीज़ों पे काम करना चालू करे जब वो अपने पढ़ाई के दौरान ही पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि ना केवल उस स्टूडेंट को सिविल सेवा में आने में लाभकारी होंगे, अगर वो सिविल सेवक बन जाएंगे तो एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनेंगे। ये लोग समझते नहीं इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल स्किल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, मैं अक्सर इस पे बहुत बल देता हूं कि अगर आपकी समझ सुधरेगी तो आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी, और जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो जब मोटी मोटी फाइल्स आएंगी आपके सामने तो आप उनको जल्दी समझ पाएंगे, उतना समय नहीं लगेगा आपको उनको समझने में। ये एक स्किल होती है कॉम्प्रीहेंशन की। दूसरी तरह समझने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है उसकी एनालिसिस करनी, यानी कि एनालिटिकल स्किल्स आपकी डेवलप होनी चाहिए। वो सिविल सेवा में आने में भी आपके लिए लाभकारी होंगी, क्योंकि अगर आप सिविल सेवा के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि प्रश्न सीधे नहीं आते कि पानीपत की लड़ाई कौन से वर्ष में हुई थी। वो एनालिटिकल आते हैं जिसमें आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। तो वो स्किल आप डेवलप कर लेंगे तो सिविल सेवा में आने में आसानी होगी, और जब आप वही मोटी मोटी फाइल के जो इश्यूज देखेंगे उसकी एनालिसिस में आपको लाभ होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का। आपके दिमाग में कितनी नॉलेज हो, कितनी एनालिसिस हो, आपको जो नंबर मिलेंगे जो आप लिखेंगे या जो इंटरव्यू में बोलेंगे उस पर मिलेंगे। उसी प्रकार से जब आप सिविल सेवक बन जाएंगे, जो आप फाइल पे नोटिंग लिखेंगे और जो लोगों से आप संवाद करेंगे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर निर्भर करेगा। तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। मैं अक्सर कहता हूँ स्पेशली जो 27, 28, 29 में अपीयर हो रहे हैं कि अभी से इन तीनों एट्रीब्यूट्स को डेवलप करो, क्योंकि इन तीनों एट्रीब्यूट्स को डेवलप करने में समय बहुत लगता है, 1-2 दिन में नहीं होगा ये। एक आखिरी सवाल स्वरूप सर, आपकी किताब का नाम है यू कैन मेक इट हैपन, पर जब मैंने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा मैंने किताब पढ़ा, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि इस किताब का टाइटल शायद ऐसा होना चाहिए था, यू कैन मेक इट हैपन स्टार मार्क प्रोवाइडेड द पॉलिटिकल सिस्टम अलाउज इट। वुड यू एग्री? Don't agree. It doesn't matter. Political system will be what? I mean, the purpose of the book will be defeated if I put a proviso in it. Sure. What I'm saying is circumstances are given to you, including political circumstances. It is on you that you can do a lot. You can still make it happen despite the set of circumstances. You can still make it happen. That's the overall takeaway from this very enlightening discussion, जहाँ पे I'm sure आप जिस भी क्षेत्र में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, we all face challenges with relation to decision making, and this book, You Can Make It Happen, is a ready reckoner
when it gives you ready-made examples, real life examples, जहाँ पे जब हम भारत के स्टील फ्रेम की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, कैसे you navigate those challenges, those opportunities, those threats. उसके लिए अनिल स्वरूप सर, thank you so much for joining us here at Study IQ. It has been a most enlightening discussion, and we are grateful that you are part of the Study IQ family. Thank you for joining us. Thank you very much. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।